nationality पे confine नहीं कर सकते, but art has been captured by sponsors. You know that whole marketing, how music get produced in our country, है ना. It's आप कोई भी गाना किसी brand को ज़हन में रखे बगैर नहीं सोच सकते. तो it's like the people who producing sugary drinks are producing your music. Hello everyone, I'm Iman Malik and welcome to the second episode of Filmabad. Today we're here with Saad Sultan, who's both a teacher and a writer. Hi Saad, how are you doing? Assalamu alaikum ji, I'm fine. How are you? All good. Can you tell us a little bit about yourself? जी, I teach. मैं different schools के अंदर global perspectives पढ़ाता हूँ. Global perspective is a school version of international relations, और it's a research based subject जहाँ पे the Cambridge wants to instill research and media literacy into students. So it's a more submission based subject. It's a bit different. I liked it. And isse pehle I have a diverse career in diverse, or you may say vulnerable. Vulnerable, why? क्योंकि specialization, if you don't do specialization in something, तो आपका फिर वो CV build नहीं होता है. Of course. So it's bit of development sector and journalism. Okay. And some media consultancies. So when you combine journalism and media, and now you're teaching at you're a teacher at schools, right? So how do you incorporate that sector within the courses that you teach? Or so reason I joined the schools was that the global perspective is actually about those issues we discuss in the development sector. SGDs, जो sustainable development goals हैं, basically. So it's to teach students that unfortunately they are in the point of history, they are in a very critical time. So we were not aware of these kind of things जब हम बच्चे थे, तो हमें इस तरह की चीज़ों की इतनी awareness नहीं थी कि दुनिया में क्या चल रहा है. I think those things were still as vivid, but वो gap था ना, where the people, students, even kids, they did not have access to that kind of information, and now they do, thanks to digital, thanks to the digital space that we're in. Exactly. And I'm sure that also has its own challenges when you're teaching kids media and development related courses as well. बिल्कुल. उसमें the first challenge I feel is that the capacity of the class. So for instance, when you're discussing a current affair issue, for say you have to talk about rise of terrorism in Pakistan, right? And there are 15-16 years old kid, right? Most of them even don't probably know what happened on 9/11, right? क्योंकि वो अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ कि the kids जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 2007 या 2008 में पैदा हुए हैं, right? तो वो sensitivities हैं, few kids they are माशाल्लाह there with their analysis, और वो they're very much there in fact. But then कुछ लोग बच्चे हैं जो अपनी उम्र के मुताबिक चल रहे हैं, जो फील करते हैं यार कि अभी it's too early to be getting engaged into politics. So yeah, the difference of capacity. So कभी-कभी I have to bring myself, teach myself कि how I have to be more sensitive about क्योंकि कुछ बच्चे sensitive हो जाते हैं. Then you talk. How do you use like media as a tool to like engage the students better? Even like I mentioned earlier, the digital space now बहुत ज़्यादा हो गए, तो kids even have access to all of this information. Does that create hurdles for you? Do you think it's going towards a better direction with this? I think schools introducing this in their curriculum is very encouraging. उसकी reason ये है कि we get to engage with the student with the media. So we can teach them about the basics of research at this age. कि एक जो fake, we all know how fake news and this conspiracy world can affect the kids. Misinformation, disinformation. Yeah, the misinformation. It's very, very sensitive. Even अभी हम भी खुद पढ़ रहे हैं. मतलब I am also in a learning stage in some dynamics. तो it's better कि we do it with them.
तो उनका वो जो एक urge to be on digital is very real now. You can't contest that. Yeah, for sure. Every kids want to be on YouTube, or most of them, or they know that there is a whole world of economy around them. There is a whole world of Exactly. opportunities. Yes. So good thing is that few of them realizes it and get benefit out of it. But the downside is it actually can give kid a financial anxiety at a very young age, and a fear of missing out on something which is not clear. Yeah. So that's how it. How can we provide like kids or even students, even young filmmakers who want to get into film or who want to utilize the digital space, who want to utilize media to get like financial independence somehow? What are the tools that we can provide them to aid them in that? How can the current world scenario help them in that? Like you mentioned, now the world is very SDG focused. Yeah. We also then that also points towards how the INGO sector, how that can benefit in connection to the SDGs. Yeah. So, there are many opportunities, and there are many mechanisms, tools, and organizations who are working towards the youth advocacy, right? Yeah. But the thing is that the reach is very limited. ठीक है, because we're sitting in capital right now. ठीक है, we have those experiences. As soon as you move to peripheries, you see that impact we keep bragging about on LinkedIn does not exist in the real world. So LinkedIn, when you go and you like scroll down, you feel that we don't lack LinkedIn is a whole professionals. different bubble. It's a world. Everything is perfect in Pakistan, and यार ये दिखाओ investors को कि यार पाकिस्तान में मतलब इतना talent है. Yeah. But then again, as soon as you move into that real world is unfortunately as gloomy as it was a few years ago for us, for Pakistan. Or unfortunately, it's even there's more bad news on the front. So अगर हम उस context में बात करें कि एक originally art का purpose अगर हम देखें, कि what's the purpose of the art? Why we should create art, right? So and that's, I am not saying it. History says it. It is for defiance, and it is for subversion, Always has been. right? Yes. Yeah. Yes. जो चीज़ें लोग जालिम हुक्मरानों के सामने नहीं कह सके, उन्होंने वो तारीख से अब तक आर्ट के जरिए राइट. और आज भी आर्ट का यही मकसद होना चाहिए, ठीक है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री टेल्स अस कि द मीडियम्स of art historically have been captured by big powers, big nexus of group of हम उसको किसी country पे confine नहीं कर सकते, हम उसे किसी nationality पे confine नहीं कर सकते. But art has been captured by sponsors. That whole marketing, how music get produced in our country, it's आप कोई भी गाना किसी brand को ज़हन में रखे बगैर नहीं सोच सकते. तो it's like the people who producing sugary drinks are producing your music, ghee wale are producing our music, Nescafe. Yeah, it's a big whirlpool that's all going towards like a very capitalistic world at the end of the day. So वो बच्चों के पास opportunity होगी, बहुत सी होगी, but it will ultimately, unfortunately, lead the talent towards that thing. So we need an alternative setup if we want to create the art which, as you said, कि कुछ सोसाइटी के अंदर अगर हम कुछ चेंज चाहते हैं, जो आर्ट का रियल मकसद है बहरहाल, तो वो फिर हमें जो है ना वो अल्टरनेटिव एक दुनिया क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ पे फिर उन स्टूडेंट्स को और उन बच्चों को हम वो, क्योंकि अभी आप किसी को यू कांट लाइक इफ समबडी इज गेटिंग हायर्ड बाय अ गुड मल्टीनेशनल कंपनी टू क्रिएट आर्ट, यू कांट स्टॉप हिम कि यार आओ इधर इनकलाब के लिए काम करते हैं, नहीं करेगा अनलेस इनकलाब इज प्रॉपर्ली थॉट आउट और उसके ऊपर हम चीज़ों को build करें. So in order to leverage art for social change, you believe that we need to step out of that whirlpool of capitalism and create another space of our own. Exactly. But don't you think that
like poses a bigger hurdle for these kids, for those trying to get, because abhi the newer generation, the kids, they want fast track. They want a YouTube channel that will get them there in a year, 2 years, Instagram, YouTube, all of these social media channels. When we were talking about digital as well, what the kids want is they want a quick and fast way of financial independence, right? Through their art, through content creation, through expressing themselves however they like, whether it's making videos, whether it's like just posting about something they've made, drawn, anything, right? So if you tell them, okay, in order to really make a difference, for your work to matter, you have to pull away from how the world is functioning and create your own separate space. Exactly. Do you think how can we like get to that point where they would be on board with something like that? And also, do you not feel like a better way of rising above that is to seep into it and then work through that? Or do you think people just get stuck in there then? So I'll start with that perception about kids. Okay. So unless I became a teacher, I used to think about kids. कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे. But these are all our assumptions. Okay. These are basically our perception of how kids think. Kids don't think that way. There are few kids जो कि उस tangent पे हैं. But most of the kids basically... So it's not a big section, right? It can be. Okay. It can be a big section. Okay. But I think abhi damage can be controlled. Abhi we don't have to panic about it. You know, the way we panic about screen time, the way we panic about the tech anxiety है. Yeah. उसको use भी करना है, उसको use भी करना है, but उसको ना we like make it bigger than what it is. And that's basically how big tech market themselves. Right? Yeah. So जो भी कोई प्रोडक्ट बनाएगा उसका ये दिल करेगा यार कि मैं उसको ऐसा बड़ा बना के बताऊं, right? So अब these are just social media platforms. Yes, they are a big part of our lives, but they don't control us yet, as I say. तो first of all तो हमें बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि everything is fine. अभी ट्रांसफॉर्मर्स मशीन्स को भरने में टाइम है. अभी कुछ अर्सा लगेगा जब मशीन्स हमें टेक ओवर करेंगी. 2005 से 10 वाले टाइम के बीच में it was this whole thing कि in another 10 years we'll have like hoverboards and flying cars. Exactly. And I think it's the same now with the kids now as well. It's the same, yes. So yes, the kids should be futuristic, but coming back to your question कि वो alternative space जो है वो किस तरह डिवाइस करेंगे, देखिए वो हम डिवाइस करके उनको देंगे. कि जब जो हमारी जनरेशन है, मेरी और आपकी जनरेशन फ़र्क है, ये हम डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन ये स्पेस उनको हम देंगे. क्या हम ऐसी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि किसी ब्रांड के लिए, ना कि किसी स्पेसिफिक इदारे के लिए. और जब उसके अंदर उनको अपना फ्यूचर नज़र आना शुरू होगा कि भाई अच्छा हम ये लिख के जाएंगे और ये कबूल किया जाएगा. ठीक है. देखिए राइटर्स कैसे पैदा होते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे में. ठीक है, आपका एक दिमाग है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, वो प्रोसेस होती है और आप लिखते हो. हर राइटर ऐसे ही पैदा होता है. कुछ राइटर हमारे यहाँ कहते हैं कि उनको इल्हाम होता है और ऑल दैट डिवाइन वही, और वो होता भी है, मैं उसका इनकार नहीं करूँगा. बट ओवरऑल इट्स अबाउट आप व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग एंड व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. तो हर चीज़ की, कैपिटलिज्म से हमें ये चीज़ की तो समझ आ गई है कि मार्केट की वैल्यू क्या है. Of course. तो उन्हीं के रूल्स के ऊपर अगर हम अगेन वही बात है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है, बट ये कहीं से शुरू होनी चाहिए. हमें कहीं पे यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, कहीं पे एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स पैदा करने की ज़रूरत है, स्पेशली मीडिया के अंदर, जहाँ जो बच्चे हैं जो वो सोचते हैं उसको लिख सकें और फिर उसको प्रेजेंट कर सकें. क्योंकि बच्चों की इमेजिनेशन तो इतनी अमेजिंग है कि आप हैरान रह जाएंगे. उनके दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हैं, हमारी तरह वो जो है वो अभी तक उनको वो प्रेशर नहीं है. लेकिन जब उनकी स्टोरी सुनने वाले ही नहीं है कोई, उनकी क्या हमारी कोई नहीं सुनता. But I feel like compared to maybe 10 years ago, now anybody who's creating anything, कोई कुछ भी create कर रहा है, they have platforms to present it on. They have
a space to create audiences for themselves. They don't need to book a hall, get a cinema in order, show their film. They can just put it up, they can just upload it. Exactly. They don't need to have a proper gallery where their art should be displayed. They can just set something up and advertise it, like put up posts about it on social media. And if not many, some people would show up. That's where they start. That's where they build. That's what they're using social media for now, right? Yeah. To build that audience for themselves that maybe 10 years ago, you and I or Sadan, we could not have built without the presence of this space. But my question comes back to that. How do you fight world powers then? Because this then looks like a journey where you are pushing against those powers, then they have complete control. Even if you look at the current world situation, there's genocides going on. Nobody can do anything about it. Yeah. Nobody can step aside and take a stance and do anything about it unless those specific world powers, they take action. Yeah. And I feel like that just shows the dominance, that just shows the extent of dominance that there is. So then how do you pull away from that and create your space? So I think one word answer to this question is books, right? And history, the knowledge of history. ये सब चीज़ें देखें अगेन, जिस तरह बिग टेक अपने आप को प्रोजेक्ट करता है ना, उस तरह पावर्स भी अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं. नो डाउट वी कांट क्वेश्चन देयर डोमिनेंस, बट ऑल्सो वी शुड नो दैट हिस्ट्री टेल्स अस कि अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होकर कोई भी काम किया जाए तो किसी भी बड़ी पावर को घुटने टेकने में मजबूर किया जा सकता है. और ये 100 साल पहले की भी बात नहीं है. तो ईरान में रेवोल्यूशन आ चुका है, चाइना में एक रेवोल्यूशन आ चुका है, रशिया में एक रेवोल्यूशन आ चुका है. ठीक है, तो ये सब रेवोल्यूशंस, ये सब चेंज जो सोसाइटी में आई, इसको पढ़ें, अपनी अपनी हिस्ट्री को पढ़ें. हम एज ए साउथ एशियंस, एज ए पाकिस्तानीज कहाँ खड़े हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है. ये चीज़ें मुश्किल हैं, बोरिंग है ऑफ कोर्स. इनको यूट्यूब की वीडियोस में इनसे गाइडेंस तो ली जा सकती है. वी कैन नज स्टूडेंट्स टूवर्ड्स दिस थिंग कि बेटा जब तक आप उस डिटेल के अंदर किताबों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी. अदरवाइज यू विल फॉल इनटू दैट ट्रैप ऑफ अटेंशन इकोनॉमी. Yes. So attention economy is basically, that even when we say that digital platforms, they give you a independence and they give you a choice, which is true. But उसके अंदर जब एक if I am a kid and I have started a YouTube channel, right, a very hypothetical example, right, और मैं देख रहा हूँ कि किस यूट्यूबर के व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो देखेगा अच्छा यार ये तो ASMR वीडियोज़ के भी मिलियन में व्यूज़ हैं और लोग सिर्फ खाना खा रहे हैं, ठीक है. और देयर आर पीपल हु ओनली रिएक्ट ऑन यूट्यूब वीडियोज़. देयर टैलेंट इज दैट दे रिएक्ट ऑन यूट्यूब वीडियोज़, राइट, एंड दे आर गेटिंग गुड मनी आउट ऑफ इट. और अब मैं शायद अगर ये कहूँ तो शायद कुछ लोग माइंड कर जाएंगे, यार ये एक वो चीज़ है जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ टैलेंट एंड वी शुड कंडेम इट. पीपल शुड नॉट मेक रिएक्शन वीडियोज़. आई डोंट नो how can like a reaction, लेकिन again then people watch it, there must be a psychology attached to it. तो वो कहेगा कि यार अच्छा मैं अब जो है वो हिस्ट्री की शकील किताबें पढ़ूं और इतना तो यहाँ पे एज ए पेरेंट्स एंड एज ए टीचर्स हमारा रोल है कि हम उनको बताएं कि द पेस यू आर विटनेसिंग अराउंड यू इज नॉट रियल, right, and don't fall into that trap of dumbness, if I may call it, right. तो मिस्टर बीस्ट इज़ फेमस इन किड्स और मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, बट लेटेस्ट वीडियो उन्होंने बनाई उसके ऊपर वो कब्र में गुजारे 7 दिन मिस्टर बीस्ट ने. तो अब आपको नहीं लगता कि बच्चे इससे इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, ठीक है, तो अगर हम For sure, of course they're being influenced by content like this. Yes. That's what I meant when I was referring to them wanting to just pace up and get somewhere with the content they make, right? Only this is what I meant. These are their influencers now. These are their influences that they actively daily look at and follow and absorb so much of. There's another one as well who showed some I don't remember his name, a YouTuber. उसने कुछ visually कुछ show किया था, like a murder scene or something.
And then ये तो देखिए it's very strange. like I don't know but they call us boomer, they call me boomer, my students, and yeah, Yeah. again yeah, I am not, but like you're a millennial now, right? हाँ, but वो उनके Yeah. लिए if Boomer. they're not Gen Z, everyone is boomer, like Yeah. okay boomer. Okay, You remember boomer. that term which जो काफी offensive हो गई थी. I think हमें इस सबसे पहले ना इस gap को address करना है. ये जो categorizations हैं ये अपने अंदर Cap is also a Gen Z term. exactly बिल्कुल. कौन सी sorry? Cap. The cap, like मुझे नहीं पता ये. So हाँ, ये vocabulary हम आपसे सीख सकते हैं. so when you say no cap, अच्छा. it means like you're being very honest and you're not lying. So Oh. cap means you're lying. Okay, so no cap. This podcast cap. में हर चीज no cap. No cap. नहीं, no. No cap, guys. जी. तो अब वो जो जनरेशन का डिफरेंस है ना, वो जो हम अपने मतलब जो मिलीनियल या उनको जो भी कह लें, तो ये कैटेगराइजेशंस भी बहुत डेंजरस हैं. व्हेन यू कैटेगराइज, जी बिल्कुल, और इसके ऊपर भी रिसर्चर्स हैं. देयर आर लाइक रिसर्च फैक्ट के जी अगर आप उनको खुद से सेगमेंट में बांट देंगे बच्चों को और बुजुर्गों को, तो वो दे फील लाइक देयर इज अ you know a sense of competition or there is a sense of proving something. Yes. But आप जब घर जाते हो तो आपकी बेटी हैं और आप उनके बाप हो और आपकी बीवी, and you know all of that. So for instance historically जो सोसाइटी के अंदर एक यूनिट है वो फैमिली का यूनिट होता है ना. आप खानदान और खानदान से पहचाने जाते हैं अपने. Yes. तो अब ये जितनी भी सेगमेंटेशंस हैं और ये जो बाइनरी थिंकिंग है, ये वही जो एक डिजिटल मीडिया अटेंशन इकोनॉमी जहाँ पे यू हैव टू बी एंग्री अबाउट एवरीथिंग. Yeah. तो अटेंशन इकोनॉमी इज बेसिकली बिकमिंग एंग्री. अब यही बातें अगर मैं एक कि हाँ, क्या मतलब बदतमीजी है? के स्टाइल से कहूँ कि हाँ वो दुनिया की पावर हाँ. हम लोगों को, तब तो आगे शायद हमारा पॉडकास्ट कोई देख ले. तो अब वो बच्चा जो है वो जब देखते हैं तो कहते हैं अच्छा यार, मुझे अब वर्ल्ड कप गुजरा ना Yeah. रिसेंटली, तो आप मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर बहुत बड़े अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट के साथ, सॉरी टू से बट एक बदतमीज बंदा बिठाया गया हर चैनल के ऊपर एक, ताकि वो बदतमीजी से बात करे, फिर वहां से वो जो कंटेंट ड्रामा क्रिएट हाँ, हो. तो that attention economy ask for that, you know, that hyperness, that lousiness, and sorry to say but that utter dumbness. तो वो ये कि फिर हाई चांस यही होता है कि जितने चॉइस के नाम पे जब हम डिजिटल मीडिया बच्चों पे छोड़ देते हैं, तो विद फ्यू एक्सेप्शंस ज़्यादातर दे फॉल इनटू that trap. Yeah, I mean, you open YouTube and you'll see taglines. Now तो अब social media is the same. You see these very, like tagline वाला जो content होता है ना, Exactly. कि yellow journalism. Exactly. So you see that and like they try to get your attention only. You open it, उसमें कुछ भी नहीं होता. कुछ भी नहीं होता. It's either just misinformation. It's either just plain false like information. And you know what's the sad part? देखिए, sad part is that अगर तो सोशल मीडिया के जो आउटलेट्स हैं ना, जो ऑर्गेनिक आउटलेट्स हैं, या किसी बच्चे ने बना लिया या किसी ने बनाया इस मकसद के लिए यार कि हम क्लिक बेट करेंगे, तो वो तो ठीक है. लेकिन जब बड़े बड़े सेटल्ड मीडिया आउटलेट लाइक ARY Geo will resort to the same tactics, lousy headlines for so long. BBC का मैं आपको I can share it, और ये कर भी देगा सादान, इसको उस पे कर भी देगा. उसमें उनकी पोस्ट थी कि जी गाड़ी की फ्रंट सीट पे सास को बिठाना चाहिए या बेगम को बिठाना चाहिए या माँ को. और अभी मैं ARY की कोई टैगलाइन इसी तरह पढ़ रहा था कि बिल्कुल ही वाहियात बात. तो अब आप समझ रहे हो कि अगर वो लोग रिजोर्ट कर गए इस चीज़ पे, और वो लोग जो सो कॉल्ड आर फ्लैग बेयरर ऑफ पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री, और वो जो BBC is global, but like they have resorted to, rather than like teaching people the art of creating a good media, they have like resorted to that. They have fell into that trap made by big tech. Yeah. So their response to this is always, we just give people what they want, which is utter. You just want ratings. That's what you want. Yeah, That's like you want more people to view. Or obviously, अगर
in comparison to see, it's a very psychologically मतलब वो thing कि if two people are sitting having a very normal toned conversation, and then there's two people who are at each other's throats, तो obviously people will pick. बिल्कुल. और अगर आप आराम से ये कह रहे हैं कि आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताबें आपको देखिए आप जिस तरह, अगर मैं मतलब ये बात कहूँ कि अक्सर बच्चे एकदम से पूछेंगे कि सर ये, हम भी पूछते थे ये सवाल कि जी केमिस्ट्री मैथ में जो हम इतने मुश्किल फार्मूलाज पढ़ते हैं, रियल लाइफ में इनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ठीक है. वो अब समझ आती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है. आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आपकी जो साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान में, आपकी पूरी दुनिया के अंदर जो साइंसदान हैं, जो जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बेसिकली त्याग दी इल्म के पीछे, तो ये बातें आपको शायद बच्चों को या समझना है, या अभी हमने उनको प्रॉपरली समझाई ही नहीं है. तो हमने पहले ही अज्यूम कर लिए कि यार बस ये जो बच्चे हैं ना, ये जो जेन जी है, ये ऐसी है वैसी है. बट दैट जेन जी इज़ आर प्रोडक्ट. दैट जेन जी इज़ बेसिकली दिस वर्ल्ड was not created by Gen Z. That world was given by us to the Gen Z. और ये जो आगे हम SDGs की भी बात कर रहे थे, और जिसके अंदर अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, तो वहाँ पे भी you see that the whole campaign, the way it is designed, it's basically they have put everything on Gen Z. You consume less, you be more responsible for your clothing. We've done all the damage 3 generations before you, but now it's on you now to book that flight on वो जिसके कार्बन फुटप्रिंट्स थोड़े से कम हो. तो वहाँ पे फिर अब जो बच्चा है उसको हमें ये बताने की ज़रूरत है, यू हैव टू ट्रेस डाउन थ्रू हिस्ट्री कि ये किसकी शरारत है. ये आपकी नहीं है. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंग्जाइटी यू आर गोइंग थ्रू. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ दिस. तो ये बेसिकली वी नीड टू टीच them properly and not assume things. So when we talk about SDGs and even climate change, isme what role do INGOs play in Pakistan specifically? So again, that's very it may become a controversial take, क्योंकि इस कुछ ज़्यादा टाइम चाहिए, बट शॉर्ट में जिस तरह मैं समझा सकूँ इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. बेसिकली मैं समझाने की कोशिश नहीं करता, मैं बताता हूँ कि जो द ऑथर आई एम रीडिंग, ठीक है, शी इज कॉल्ड नाओमी क्लाइन, और हर लेटेस्ट बुक इज डॉपलगैंगर, राइट. और डॉपलगैंगर में शी हैज टॉक्ड अबाउट अ मिरर वर्ल्ड, राइट. हाँ. सो बाय मिरर वर्ल्ड शी सेज दैट दिस डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है, जो हमें लगता है कि इट्स चॉइस और इट्स समथिंग इमेंसिपेटिंग, इट्स एक्चुअली आर a digital evil of the whole world, right. A digital evil को वो बड़ा शॉर्ट में समझाती हैं कि देखें, जब हम छोटे टाइम में मुश्किल बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वी टर्न इट इनटू अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. इवन यहाँ पे भी बहुत से क्लेम्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने कर दी बगैर उसको सोचे समझे. तो वो ये कहती है कि जब हम मीडिया को एज अ टूल लेते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया को एज अ टूल लेते हैं, तो वी फेल इनटू द सेम ट्रैप जिसकी फिर एक पीछे से हिस्ट्री है, जो कोल्ड वॉर के बाद शुरू हो जाती है. कि ये जो सेक्टर है ये कैसे शुरू होता है, और फिर किस तरह से मार्केटिंग, किस तरह से बिजनेसेस, किस तरह से INGOs, ये सब कन्वर्ज करती हैं कहीं पे. और अगर आप फिर उनकी डॉपलगैंगर के से पहले वाली किताब पढ़ें, दिस चेंजेस एवरीथिंग, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है. फिर उससे पहले की उनकी जो किताब है इट्स शॉक डॉक्ट्राइन. उससे पहले की उनकी किताब है वो इट्स कॉल्ड नो लोगो. तो अब वो कॉन्सेप्ट ही ये था कि वो डॉपलगैंगर का कि एक और राइटर है नोमी वुल्फ, तो लोगों को उन्होंने कंफ्यूज करना शुरू कर दिया उनके साथ. और फिर उन्होंने ये नोट किया कि अगर आप बहुत सी मतलब चीज़ों को सोशल मीडिया के बनाए हुए एक माइंडसेट से बताने की कोशिश करेंगे तो इवेंचुअली पीपल विद गुड हार्ट, पीपल विद गुड इंटेंशंस विल बिकम और साउंड लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट. तो अब INGOs का इसके अंदर जो रोल है इस सब चीज़ों के अंदर, वो अनफॉर्चुनेटली इतना कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. क्योंकि अगर वो ऑप्टिमिस्टिक होता तो चेंज आ चुकी होती अभी तक, या कोई ग्लिम्पसेस हमें नज़र आते.
तो आई विल बी वेरी अपफ्रंट अबाउट yeah. इट के also I don't want to be sound condescending towards the people who work in the development sector, because they have a good heart, they do their job because they feel that they have a social responsibility, Yeah, all of for them, sure. all of them, but accumulatively because हमारी knowledge एक हद तक है, हमें नहीं पता कि वो जो बोर्ड रूम्स है उनके अंदर क्या होता है, वी डोंट नो दैट, राइट? Yeah. तो INGOs का जो एक तरीका वारदात है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, मैं ये कहूँगा। लेकिन अगर वन वर्ड आप मुझे कहें तो INGOs भी उसी, अनफॉर्चुनेटली शायद मैं एग्जेजरेट ना कर दूं तो, उसी कैपिटलिस्टिक एक जो एक नेक्सस है उसका एक पार्ट है, जो कि कंट्रोल करके रखता है ये जो हाउ द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। Yeah. ठीक है, और वी नो दैट हाउ दे हैव एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज फॉर सेंचुरीज, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, they kind of, in a subtle, low-key way, persist those big agendas, in short. I was just recalling, you mentioned that we were talking about climate change, and you mentioned that the last conference was... Yeah, exactly. Yeah. This conference के अंदर वो जो UAE के जो head of state हैं, जो कि किसी oil company में भी उनके बहुत ज़्यादा stakes हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिसर्च ही नहीं है जो ये कह रही हो कि जो fossil fuel है वो फॉसिल फ्यूल जो है वो फेज आउट हो रहा है। और इससे पहले कोक ने स्पॉन्सर की थी, कोक स्पॉन्सर्ड इट, या राइट? और कोक सबसे बड़ा प्लास्टिक पोल्यूटर है, तो इट्स ऑलमोस्ट फनी, So see, it's so ironic. Yeah. That's where it puts us, exactly. right? Yeah. So, given the space we're in now, right, with how these INGOs work and how even जो प्राइमरी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, ये जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, उसमें दिस इज द स्ट्रक्चर दैट्स गोइंग अराउंड, राइट? सो देन आई कम टू दैट पॉइंट वेयर हाउ कैन वी यूज आवर आर्ट टू बेनिफिट for social change, but to benefit out of these spaces as well, for young filmmakers, for artists, for people who want to move ahead. Yeah. तो देखें, जो एक मेरे सर है, जब उनसे इस तरह का सवाल पूछता हूँ ना मैं, तो वो कहते हैं कि पहले डिफाइन करें हुआ वही हम कौन है। जब हम कहते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आर्टिस्ट की बात करें, हम आर्टिस्ट की बात, पाकिस्तानी आर्टिस्ट। जी। तो देखिए, अभी तो इस पॉइंट पे मैंने कि जैसा कि कहा कि सारा पैसा तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स के पास है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, ठीक है? तो अभी तो हमें उन नेक्ससेस के अंदर काम करना पड़ेगा, बट वी कैन क्वेश्चन, वी कैन मेक आवर यंग जनरेशन मोर क्रिटिकल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यू देने जाते हैं तो यू शुड बी मोर देयर विद योर क्वेश्चंस, और आहिस्ता आहिस्ता, that's not welcomed, but then that's the challenge we have to take, right? और उसके अंदर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक एक, अगेन मैं उसी बात पे कहूँगा कि जिसको आप जमात साजी भी कहते हैं, कि जब हम बात करते हैं ना पॉलिटिक्स की और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है, तो हमारे मुल्क में उसको सियासी यतीमी भी कहते हैं। क्या हमें, वी डोंट हैव लीडर्स, राइट? जैसे हमें हर मौके पे जब हम मतलब बच्चे होते हैं, हमें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, तो मुल्क भी जिसको हम कहते हैं तरक्की याफ्ता मुल्क जो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपने आप को यतीम फील नहीं करते, उनको थोड़ा सा आसरा होता है कि हमारे साथ कोई इशू होगा तो स्टेट केयर। हाँ, तो देखिए, हमें सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा जो जिस तरह के नरेटिव्स हैं कि भाई मुल्क छोड़ के चले जाओ और हम तो हैं ही ऐसे और हम तो हैं ही वैसे, तो हम जब खुद ही हर नतीजा निकाल के बैठे हैं तो हम वहाँ पे किसी को क्या कहेंगे कि यार तुम मतलब क्या ही दर्द देंगे। लेकिन हल यही है कि नए आर्टिस्ट को जब पता होगा कि भाई अगर मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो इट डज नॉट गो वेल विद द एस्टेब्लिश्ड स्टेटस को, तो मेरे रास्ते के अंदर रोड़े ना और मैं उसमें से बिजनेस करूँ, ठीक है? तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली घूम फिर के आप उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर अनफॉर्चुनेटली मीडिया क्रिएट कर सकते हैं जो उसकी डिमांड है। अब हमने फिल्म्स बनाई,
सदान और हमने we created 4 films for very well known organization. But he knows कि वो जो script था जो कि मैंने लिखा था, but it was all directed. अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें कोई हमने गलत चीज़ पोर्ट्रे की है, उसमें सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन बहुत से सवाल हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप कहते हो कि नहीं यार ये सादान ये चाहता था उसके अंदर करना, या मैं उसको अगर होता, अगर वो मैं और सादान वो फिल्म्स बना रहे होते तो शायद कम्प्लीटली डिफरेंट बनाते, और इस वजह से हमें काम मिलता भी नहीं है ज़्यादा। तो ये देखिए ये चैलेंज है, इस पे थोड़ा सा हमें मतलब जब अगेन मैं हमें कहता हूँ तो हमारी इंस्टीट्यूट हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, आई मस्ट से they can be those agent of change. वहाँ से हम एक सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और कुछ हम ऐसी पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, जिस तरह देखें आई टीच इन स्कूल्स, आई हैव टॉट इन यूनिवर्सिटीज एज वेल, बट इट्स सो स्ट्रेंज दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन schools and universities. It's almost funny that our schools completely operate in a isolated और फिर उसके अंदर भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं they are different world, and the government schools, और उनको कुछ नहीं पता पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में क्या है. disparity between, for instance, one public school in Islamabad and one public school in another city in the outskirts or something. इस्लामाबाद के तो प्राइवेट स्कूल्स भी डिफरेंट ही हैं. Exactly. And even the university structures वो भी इतना ज़्यादा vary करते हैं. So there's that shock when a kid goes from one school to another, or one university to another even. Which becomes so strange. Exactly. तो ये देखिए कि ऑनेस्टली ये स्टेट लेवल के डिसीजंस होते हैं. जब आप स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इन चीज़ों को, जो भी आपको रूल कर रहा है, वो इस बारे में सीरियस नहीं होगा, तो हम एज ए इंडिविजुअल्स कितना भी अमेजिंग काम और आर्ट क्रिएट कर लें, वो हमारी अपनी, अभी भी देखिए अपॉर्चुनिटीज, अगर आप इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, तो आपको पता है आज के कोई भी जो है ना वो बच्चा शायद वो ये ना कह सके कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ. फ्रीलांसिंग और वो जो एक प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन क्या वो कहीं पे पाइल अप हो रहा है, कहीं पे क्या ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, द वे हाउ ऑर्गेनाइज्ड द कैपिटलिस्ट फोर्सेस आर. All of these organizations, as I've said, that it took me years, and अभी भी I feel so much, कि यार बहुत कुछ अभी रहता है समझ, पहले इसकी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं खुद तो समझूं कि मतलब ये how it works. अगर हम इसी तरह वही बात की बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे ना कि जी इल्यूमिनाटी है, और अपनी वो बुक में एग्जैक्टली नाओमी क्लाइन जो है उसने इस चीज़ को एड्रेस किया है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम बहुत एक जो है ना वो मुश्किल सा मामला उसको we reduce into a very lousy ridicule the intensity of the matter. I was just thinking about that as well when you were talking now. Okay, even a lot of things that we've said on here, there's such expansive concepts that need to be delved into and deconstructed separately. But to say them in a one-liner or two-liner, it becomes almost हाँ, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. लेकिन देखें अब जिस तरह ये पॉडकास्ट है तो आप कंटिन्यूशन करें, आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर और बात करें, और आप हम अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू नहीं सकते, हम थोड़ी एंग्री भी हो जाएंगे अगर हमारी ये बात है ना, दैट एंग्री मोड ऑन. या लेकिन नहीं, देखिए सबसे जो बड़ी बात है ना जो मैंने सीखी अपने टीचर से, वो ये कि होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है. एंड आई एम नॉट लाइक बिकमिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर और ये जी आप अपने ये कर लें और ये कर लें, क्योंकि देखिए पूरा मोटिवेशनल जो लैंडस्केप है ना वो सिर्फ आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को पॉलिश करने की बात करता है, लेकिन वो सोसाइटी को वो आपको कभी भी सवाल करना नहीं सिखाएंगे. अभी जो ट्रेनर्स जाते हैं 3-3 दिन की रिट्रीट्स कराते हैं पहाड़ों पे लेके जाके, ये क्या कह रहे होते हैं आपको कि यार आप अपनी नौकरी अच्छी तरह करें. तो सडनली हमारा जो तबका काम करने वाला है उसको लगता है यार कि अभी भी देयर इज, आप ऐसे ड्रेस होके जाएं, आप ऐसे वो लगें, आप अपनी पर्सनैलिटी में ये करें, आप वो करें. तो दैट होल सेल्फ हेल्प, अभी आप यू गो टू एनी बुक स्टोर इन इस्लामाबाद और आप देखें कि उसमें क्या किताबें बिक रही हैं. I also personally feel that this is also a part of the capitalistic structures where they target your insecurities. Exactly.
to push you further. And put the blame on you. Exactly. You're the problem. You're the problem. तुम सही सुबह उठ नहीं रहे You're हो. not the problem. हाँ, तुम सही तरह कपड़े नहीं पहन रहे हो. मैंने सारी उम्र ये फेस किया. मैंने सारी उम्र ये चीज फेस की. ठीक है. हाँ. This is a very क्योंकि तुम you're not, you know, you're not you casually, you always come casual in offices and all, like that's, I have to sit 10 hours. ठीक है, nobody notices me, let me be in my comfortable space. तो you know वो सब घूम फिर के फिर आप पे आ जाता है और आपको ये लगता है यार कि आई एम नॉट डूइंग इनफ. हालांकि वहाँ पे हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि एक पूरा एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर है हमारी स्टेट का, अनफॉर्चुनेटली, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट कर चुका है और उसका मकसद ये है कि वो आप पे डाल दे हर चीज़. और उसको हम अपने स्टूडेंट्स को, जहाँ से बात शुरू हुई थी, कि अपने छोटे बच्चों को हमने उस जिम्मेदारी से निकालना है. और अभी भी हम उनको, बजाय उसके कि हम उस जेनजी मोड में जाएं और हम उस मोड में जाएं, हम उसको निकालें और हम वो बैरियर्स ना क्रिएट करें उनके लिए भी और अपने लिए भी. हम एक्चुअली आर्टिस्ट से उनको मुतारिफ कराएं. आपने हम आर्ट से पीपल गेटकीप आल्सो सो मच, लाइक अ लॉट ऑफ. हाँ, तो अब आप देखिए, मतलब मैं जाता हूँ एक दिन, मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ अपने बच्चों से, लेकिन दूसरे दिन अगर मैं अपनी क्लास में पूछूँ कि भाई आप फैज़ अहमद फैज़ को जानते हैं और 30 में से सिर्फ 3 हाथ खड़े हों, तो एक दफ़ा तो आपका दिल थोड़ा सा परेशान हो जाएगा ना. और फिर वो उनको जो उनकी हिस्ट्री से डिटैच कर दिया गया है ना. ठीक है, आप हीरोज़ की बात ही कर लें, आप हमारे अब जो ये एक अगेन ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो कि आपको आपके इंडिजिनस और लोकल हीरोज़ की अच्छी तरह पहचान ही नहीं करने देता, तो उससे निकालना पड़ेगा. नैरेटिव्स आर टेंटेड. एग्जैक्टली. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अगर आप वाकई उनको मोटिवेट करना चाहते हैं बच्चों को और होप देना चाहते हैं, तो एक लीनिएज है, यू नो, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो हैं, अगर आपने उनका नाम सुना हो, मैंने उनको लेटली बहुत पढ़ा है. शाह वलीउल्लाह जो हैं, तो ये सारे यू नो वो जो एक हमारा एक बाइनरी माइंड सेट बन गया ना, कि नहीं यार अगर किसी की दाढ़ी है तो उसको हम मौलवी ही कहेंगे, और यू नो उसको हम उन लोगों, वो कौन है, हम उनको, उन लोगों का एक वो समंदर है नॉलेज का, उनको सिर्फ पढ़ने के लिए आपको सालों लग जाते हैं. तो ये सोचेंगे उन्होंने उस ज़माने में जो है वो कितनी चीज़ें, और ये पूरी लीनिएज है. इस लीनिएज को पढ़ना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन है. इसको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे ये समझें कि इस खित्ते की कितनी तासीर थी. ठीक है, और जब यहाँ पे हमारे रूलर्स आए, हमारे यहाँ पे जब लोग आए, तो किस तरह उसने इससे काटा हमें. How do you think we can, is there any way we can build this gap, like close this gap between like history, knowledge, all of that, with the integration of film more into, like, for instance, courses, or the understanding of it, the understanding of that medium for kids to use that also. Because for instance, if attention spans become more, right? Exactly. So if they're not reading books, maybe they can dive into that with film. Yeah, right? Exactly. And then a step ahead, maybe they can use film to create more of that content that helps build that gap between the generations. अच्छी फिल्म्स भी एक अच्छी किताब की तरह है, और अब जब आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, देन इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको बुक की तरफ खुद ही नच कर देगा. तो इसका एज ए सेट के देखिए, टीचर्स जो है हमारे, उनको एक सिनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स और हमारी जो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मिल के ये समझने की ज़रूरत है कि यार हमें किस तरह का जो है ना वो नॉलेज अपने बच्चों को देना है, और किस तरह की चीज़ सिखानी है कि वो चीज़ बनाएं. ठीक है, और उसके अंदर जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह कैम्ब्रिज ने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं, और उन सब के मीडिया डिपार्टमेंट्स के पास एक वॉइस है, यू नो दैट वॉइस विच इज़ इंडिपेंडेंट, विच कैन बी इंडिपेंडेंट, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एकेडेमिया की. अगर आप अगेन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ की मिसाल लें, आप हार्वर्ड की मिसाल लें, आप MIT की मिसाल लें, these universities are not only universities, right? They work as agencies.
ठीक है. Yeah. और अगेन अगर आप हिस्टोरिकली brands, जाए if तो I may also ऑल्सो दे आर add. ब्रांड्स एक्चुअली. Brands. ठीक है, इन सम वे Yeah. लो की एक्सप्लॉयटेटिव एज वेल, Low-key. राइट. लो की इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि I अगेन doubt. यू नो थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, और Yeah, आई yeah. वांट पीपल टू यू नो गो एंड इंडिपेंडेंटली Yeah. रिसर्च अबाउट Yeah. दीज थिंग्स. लेकिन उन्हीं की वो एक आर्ट को सीख के हम देख सकते हैं कि यार अगर इतनी ताकत लोगों को यू नो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो अगर आपकी सोसाइटी में ये माइंडसेट आप बनाएंगे कि लोगों की फलाह के लिए काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो जो आपका एक फाइनेंस आप हिरार्की पे पिरामिड में टॉप है ना सोसाइटी के अंदर, तो वो हमें बताना पड़ेगा कि ह्यूमैनिटी है. ये लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. लोगों के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता, लोगों के बगैर मशीन भी नहीं बन सकती, इंसान के बगैर. इंसान आप माने या ना माने काफ़ी अमेजिंग किस्म की एक स्पीशी है, और उसको हमें बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि भाई आपका जो आर्ट है वो, और वो क्योंकि इतने ज़्यादा उनके पास यहाँ पे भी देखिए प्राइवेट स्कूल्स, एवरीबडी क्रिटिसाइज प्राइवेट स्कूल्स कि जी वो एक दे बिजनेस सेंटर्स एंड दे लाइक यू नो वो, अब वो सब भी और पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट दे send their kids to those schools and then they criticize those schools in front of them. तो एक तो हमें ये जो केस अगेंस्ट एजुकेशन चला ना हमारी सोसाइटी के अंदर, और ये जो सॉरी टू से कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जब वो मुंह उठा के कह देंगे जी कि बेटियों को यूनिवर्सिटी में ना भेजें, ठीक है, और ये स्कूल्स क्या कह रहे हैं. बेशक बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, लेकिन अभी हम अगर एक वाहिद जो एक होपफुल चीज़ है वो हमारे ये जो है वो मदरसे ही हैं, चाहे वो मदरसा है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट है. तो इसको हम हल्का सा एक यू नो एक सिनर्जी क्रिएट करें यहाँ पे, एक एक पूरी चेन हो टीचर्स की जो कि इस टाइप का कंटेंट पढ़ाएं, और उसकी वैल्यू देखिए. वैल्यू के साथ आपको चीज़ करनी पड़ती है अटैच, सीधी सी बात है. अगर एक बच्चा वो कहेगा यार मैं एक हिस्ट्री पे कोई मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ, और उसकी वैल्यू मिल रही होगी, उसको लाइक्स मिल रहे होंगे, उसको हम बुला रहे होंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और पूछ रहे होंगे कि भाई बताओ तुमने ये काम किया. अब इस पॉडकास्ट पे हमारा अगला विजन ये है कि हम उन स्टूडेंट्स को जो रिसर्च करते हैं, अब रिसर्च देखें कितना बोरिंग साउंड करता है ना रिसर्च. अब इस डिजिटल फ्रेंजी के अंदर सडनली आपने बच्चे को कहना है यार कि तुम्हें 15-20 दिन जो है ना वो ये रिसर्च करनी पड़ेगी, तो वो उसको शुरू में मुश्किल लगेगा, बट ट्रस्ट मी क्योंकि मेरा ये काम है, आई डू दैट. वो थोड़ा सा जब आप उसको नच कर देते हैं ना, तो वो फिर उसके अंदर, और इट बिकम्स, इट ग्रोज ऑन यू व्हेन यू स्टार्ट रिसर्चिंग. So on this note, where you talk about कि okay, giving them direction, giving people direction or beginners direction is what we can essentially do to aid them, right? So if we direct them to get more, like to research more, get more insight on how they can utilize the skills that they want to have or that they currently have, and get the most out of them. When we look into media, when we look into film, when we look into INGOs even, usme once they're there, how do we guide them then on, for instance, agar INGO mein ja rahe hain, there's like you said कि if you're creating something for an organization, you're forwarding their agenda, right? Exactly. You're working around their agenda, you're working around what they need you to do. So when you come to that point where you have a project, like a young filmmaker got a project, now there's that agenda being pushed through them, right? How do you see that? How do you see that structure? अगर INGO है या कोई और भी structure है उसमें, how does this work then? देखिए जो INGOs हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अभी तो वो एक फाइनेंशियल हब है, ठीक है. इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि देखें जिस तरह INGOs भी लोग ही चलाते हैं ना, कोई रोबोट तो चलाते नहीं है, और वो भी एक हमारी तरह के इवॉल्विंग लोग हैं, ठीक है. और आहिस्ता आहिस्ता अगर उनको एक पुश मिलता रहे, जैसे कि पुश से मेरा मुराद है यहाँ कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हों कि हम अपना नरेटिव पुश कर सकें उन INGOs के सामने. और मैंने देखे ऐसे लोग जो इस स्कीम ऑफ अफेयर के अंदर भी दे कीप attached with their agenda. Also, sorry to cut you, but what do you think our agendas would be, and what are the agendas that we're pushing against?
in this? सो अगेन कि जहाँ पे भी हाइपर इंडिविजुअलिज्म की बात आती है, या जहाँ पे भी, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह हम बच्चे को ये कहते हैं ना कि इस चीज़ के ज़िम्मेदार तुम खुद हो, ठीक है, उसी तरह जिस तरह के जो मुल्क हैं ना जो कॉलोनाइज्ड रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह बहुत से अफ्रीकन मुल्क हैं, इंडिया है, तो ये जो पावरफुल कंट्रीज़ का नरेटिव है ना हमारे अगेंस्ट, वो यही है कि ये तुम्हारा कसूर है, तुम लोग हो ही करप्ट, तुम लोग Yes. हो ही एक्सट्रीमिस्ट, Yes. तुम लोग हो ही, तुम लोगों को तो अपनी गवर्नेंस भी अभी तक करनी नहीं आई। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी आप इसको समझें, लेकिन ये जो लो की एक मैसेज होता है उसके पीछे यही होता है कि तुम लोगों को तो इन बेसिक चीज़ों का भी नहीं पता। तो वहाँ ये वो नरेटिव है जिसके अगेंस्ट हमें पुश करके फिर हम थोड़ा देखें, वही बात है कि ये जो डिजिटल लैंडस्केप है ना, ये आपको कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करने देगा। Also, it's global now. इट्स ग्लोबल। Global now. So there's global perspectives as well एग्जैक्टली that एग्जैक्टली we're fighting against. देखिए फ्रांस फैनॉन बहुत एक अल्जीरियन रेवोल्यूशनिस्ट, बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी लिटरेरी मैन, तो उनका ही यूज्ड टू टॉक अबाउट अ कम्युनिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड। द थर्ड वर्ल्ड शुड जिस तरह हम यहाँ पे कहते हैं ना कि जो लोग मजलूम हैं उनको इकट्ठे होने की ज़रूरत है। तो वो जो नरेटिव्स हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो नरेटिव्स हैं, वो जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जब आप उनको हिस्ट्री में लेके जाते हैं और आपको बताते हैं दैट्स द वे यू वर, दैट्स हाउ बेसिकली दे एक्सप्लॉइटेड यू। तो अभी मेरी एक क्लास में हमारा लेक्चर था आर्ट्स एंड सोसाइटी पे, आर्ट्स एंड बिजनेस पे, तो उसमें 9 लोगों ही मैंने बेसिकली रिव्यू की मेरे बच्चों ने। तो वो हैरान रह गए कि यार ये जो ब्रांड्स हैं जो हमारे लिए ओवर द एक जिसको कहते हैं ओवर द लार्जर देन लाइफ ब्रांड्स हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, नाइकी और ये सब, स्टारबक्स की, कैसे इन्होंने मतलब शुरू में एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और बीच में फिर उस प्रोडक्ट को बिल्कुल गायब कर दिया और सब कुछ मार्केटिंग के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। अब आज की 90% ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स और एक वो जो एक नरेटिव है, वो आपको नाइकी ऐसे सक्सेस स्टोरी बताएगा, बट जब आप एक एकेडमिक की बुक पढ़ेंगे तो वो आपको बताएगा यार कि नाइकी इज अ स्टोरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और फिर कल्चर्स के साथ जोड़ देना, कल्चर्स के साथ आप जोड़ देते हो उसको, आप बेसिकली लव्स जो हैं, ठीक है, आप उन्हीं को पेटेंट कर लेते हो, ख्याल को पेटेंट कर लेते हो। डर से आगे जीत है, कितना बड़ा ख्याल है, लेकिन जब मैं कहता हूँ तो क्या ज़हन में आता है आपके? यू नो दैट राइट, कि वो एडवेंचर इज ओनली राइडिंग फास्ट बाइक्स एंड माउंटेन्स। तो सो दैट्स हाउ बेसिकली वी नीड टू टीच द किड्स के ये जो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की चोरी की गई है ना, जब उनको पता लगेगा कि यार दिस इज द स्टोरी विच इज़ वे मोर इंटरेस्टिंग देन द चूरन दीज whatever you may say. It's not the product now then. Yeah. It's not the product, it's the idea of the product. Yes. That's what marketing is. The idea of the product that you're selling through the color, through a visual, through a tagline, like you said. All of these things coming together, and that's what they're putting forth. Yeah. Right? Yeah. Now coming back to, so we spoke about a lot of things. We talked about how talked about a lot of things. There's bigger structures, the capitalistic structures, जिसके अंदर से हमें निकल के अपनी स्पेस बनानी है, उनको समझने की जरूरत है, उनको समझ सीखने की जरूरत है। By using their laws, their principles, the way they function, we step out of that. We need to beat them on their own game, basically. But by isolating from them, right? That's the point that I want to come back to with the addition. And I'd also like to ask you how the Western perspective then aids to that or helps like it when it comes to our perspectives then, Pakistan for instance. So let me put it that way. अगर आप गार्डियन देखें ना, गार्डियन न्यूज़पेपर, ठीक है, तो they don't take sponsorship from anyone. अगर आप उसके नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो वो कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म रन करते हैं, हमें फंड करें। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन इट्स कॉल्ड इंटरसेप्ट, एंड इंटरसेप्ट इज़ ऑल्सो अ बॉडी ऑफ जर्नलिस्ट जो कहते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई फंड नहीं लेते और आप लोग हमें जो हैं वो फंड करें और हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और जिसके अंदर आर्ट है, विजुअल्स है, वो आपके सामने लेकर आएंगे,
ठीक है, तो एक तो ये तरीका है सीधा सीधा, ठीक है, लेकिन दूसरा मैं उसमें भी तो बायस होता है, देखिए there's उसमें always bias. देयर इज ऑलवेज बायस, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टिल देयर आर, ऐसा नहीं है कि हर चीज ही कि देयर आर नो अल्टरनेटिव Yeah, so डिस्कोर्स, like देयर आर if, स्पेसेस. yeah, like if you look at Pakistan, you know that there's these 3 news channels and this is how हाँ. these are the 3 perspectives that they represent, Exactly. and they will not go the other way. एग्जैक्टली Right. लेकिन फिर आप देखेंगे जिस तरह पाकिस्तान एक्सपीरियंस है शहजाद का, ठीक है, आई पर्सनली लाइक दैट पॉडकास्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके अंदर जो लोग आ रहे हैं या जिस तरह से ही क्वेश्चंस देम, और बहुत उसके पीछे एक अगेन वो आपको कभी कभी आपको लगेगा कि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, इट्स नॉट एज ही इज नॉट एज एंग्री एज एनीवन. Yeah. तो आई लाइक हिम एज अ पॉडकास्टर, द वे ही हैज क्रिएटेड दैट होल सिनर्जी. लेकिन फिर वही बात है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आप देखते हो कि बहुत से और पॉडकास्टर्स जो हैं दे रिजोर्ट टू देन दैट सेल्फ हेल्प जोन, कि इनको पैसे कैसे कमाएं, मिलियनर कैसे बना जाए, उसकी नेटवर्थ, इसकी नेटवर्थ, और फिर Clickbait, it's Yeah. all clickbait. या That's इट्स what ऑल people क्लिकबेट. go to. और देखिए नेटवर्थ बनाने में कोई इशू नहीं है. But I also want to ask you that clickbait question. या श्योर. Okay, how can young filmmakers or young professionals who want to go towards film, when we're talking about the global world, Yeah. we're talking about opportunities being specifically only like in one bubble, Yeah. right? How do, for instance, those people in Pakistan get access to those opportunities and bring something back Yeah. to aid society, to aid social change Okay. within Pakistan? सो बेसिकली देखें लिंक्डइन, हम उसको थोड़ा सा ऑफ कोर्स एक फनी बैंटर होता है हमेशा मेरा उसको देख के कि यार मैं उसको देखता हूँ तो आई I गेट swear to एंजाइटी. God, same. I लेकिन don't even open it हाँ, anymore. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हब. अगर आप अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने अगेन आई एम विद द फियर ऑफ साउंडिंग लाइक नॉट अ बूमर, लाइक अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, कि आप अपनी Corporate एक trainer. तो लेकिन वो देखें अब LinkedIn पे हमें करना अपना- पड़ेगा. लिंक्डइन पे अपना अच्छा प्रोफाइल करें, Profile कनेक्ट बनाएं. करें लोगों के साथ, और वहाँ पे जितनी भी एड एजेंसीज हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए एड अगेन इज रियल, that money is basically real, right? Yes. What we need to do is that to strengthen ourselves where we can use that money the way we want. तो या तो वो देना बंद कर देंगे, या फिर वो शायद किसी नतीजे पे पहुंच जाए. तो वहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जो है वो प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई वर्ल्ड बैंक का आजकल जो है वो क्या फ़ंड है, वो किस चीज़ के ऊपर जो है वो दे आर फंडिंग क्लाइमेट के, क्योंकि दिट्स अ बिग ऑपरेशंस. then it's not only World Bank, it's UN, it's ADB, Asian Development Bank, then there's IFC, International Finance Corporation, और इन सब के अंदर British Council, USAID, right? So LinkedIn के बाद there is a organization which called Park NGO, right? It's run by a very good friend, Safir, और उनकी एक बड़ी अच्छी थिएटर कंपनी भी है. और यस, तो पार्क एनजीओ के ऊपर बड़े अरसे से ही लाइक द वेबसाइट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ फंडिंग्स, कि भाई इतने ये एजेंसी इस चीज़ के लिए इतना फंड कर रही है, इस किस्म के प्रपोजल बनाए. आजकल जो गूगल इटसेल्फ इज़ फंडिंग अ लॉट, वो बहुत से फंड्स हैं उनके अवेलेबल है, रिसर्च के अवेलेबल है. तो ये एक ऑन टॉप ऑफ माई हेड अगेन लिंक्डइन, पार्क एनजीओ, देन देयर इज़ अ ब्राइट स्पायर, देयर इज़ वहाँ पे भी काफ़ी कंसल्टेंसीज की जो है वो इंफॉर्मेशन रहती है. Right. And when looking into these, what are some factors that people can, take in account or consider? Like we were talking about SDGs before, some things like that. What are the factors that they need to be more focused on? First of all, they should not self-censor themselves. जिस तरह हमने भी जब हमने INGOs की बात शुरू की ना, this again is a whole different topic to अगेन देखिए अब वो बात वही है. क्या मैंने सारी उम्र एड सेक्टर के लिए काम नहीं किया, लेकिन क्या मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता? क्यों नहीं? हम अपने बाप को भी क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी माँ को भी करते हैं कि यार आपने हमें सही तरह से नहीं पाला. तो ये कुछ ऐसी एंटिटीज तो नहीं है ना कि जिनको हम क्रिटिसाइज ना कर सकें. लेकिन फिर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यार अभी जब तक मैं मेरे से मुराद के हम I see the angry हम सब एक उनको अल्टरनेटिव डिस्कोर्स नहीं देते, तब तक हम उनको ये
ये नहीं कह सकते यार कि नहीं 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 अब आप एड सेक्टर के साथ काम ना करें, आप कोक स्टूडियो में काम ना करें, बिल्कुल करें और आप अच्छे पैसे कमाएं, लेकिन ये जहन में रखें कि ये सिर्फ आपकी अपनी ग्रूमिंग है। और ये अगर आप अपने वो एक तबाह हाल मुल्क के अंदर एक अपनी एक छोटी सी फर्स्ट वर्ल्ड बना के रखना चाहते हैं तो वहाँ पे तो आपको लीड करेगी, बट अगर आप फिर यू नीड टू कंट्रीब्यूट फॉर अ सोसाइटी, देन देयर आर हार्ड डिसीजंस टू टेक. So you go there, you work for them, you earn money. At the end of the day, you need to make them talk your words. You want to make them tell your story. That's how you should see That's it. the biggest fight then. That's the biggest transition. That's what we've been talking about since the Exactly, beginning till exactly. end. How to shift those perspectives, how to get that access, how to be heard and, spoken about. And honestly, because I've worked in this sector, and that's why I'm saying that, the people, they listen to you. Yeah. The people, they don't outrightly, it's not, वो उस तरह से नहीं है कि कोई एजेंडा लेकर आए और वो हो रहा है, नहीं, it's evolving सेक्टर. और देखिए यूएन जो है वो उसमें 190 कंट्रीज से ज़्यादा की मेंबरशिप है, ठीक है, उसमें अभी बहुत से मुल्कों का कंट्रोल है. क्या पता अगर कुछ तरह से प्रेशर डले तो उसकी कोई वो चीज़ें honestly बदल don't जाए. see how इस वेरी ऑप्टिमिस्टिक point- है ना. इस पॉइंट पे जितना प्रेशर है इससे ज़्यादा प्रेशर क्या ही पुट किया जा सकता है ऑन an organization like this. So I don't have a very optimistic view of Yeah. all of this at the moment. Exactly. But लेकिन आप देखें, आप चाइना it's की अगर refreshing to see that someone does. लेकिन अगर आप उसमें ये देखें चाइना को क्यों पढ़ना जरूरी है, इवन इंडिया को पढ़ना क्यों जरूरी है. थैंक्स गॉड इंडिया को तो सबसे ज्यादा पढ़ना जरूरी है हाँ, for पाकिस्तान. हाँ, I think. एग्जैक्टली. लेकिन आप वो देखेंगे उसको क्या ही पढ़ेंगे कि जब हम उस हिंदू मुसलमान के नरेटिव से बाहर ही नहीं आएंगे और वो एक मोदी बैशिंग एटीट्यूड से बाहर ही नहीं आएंगे. वो हम उससे बाहर जा ही नहीं सकते. ये हम वही है ना, ये सारे वो differences like हालांकि you said. इंडिया में बहुत मसाइल हैं, लेकिन देखिए उन्होंने दे हैव ब्रॉट देमसेल्व्स ऑन द वर्ल्ड टेबल. एटलीस्ट वहाँ वो उनके जो लोग हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को दे आर प्राउड इंडियंस. ठीक है, अभी कनाडा को उन्होंने आंखें दिखाई. मुझे अच्छा लगा कि यार हमारे कोई साउथ एशियन मुल्क के अंदर कुछ मतलब हालांकि वो हम उसको ओन नहीं कर सकते टेक्निकली, क्योंकि अगर हम ओन करेंगे तो हम दुश्मन को ओन कर रहे हैं. लेकिन ये देखें, ये बहुत ज़रूरी है. हमें अपनी रीजनल, चाइना ने कैसे तरक्की की उसको पढ़ने की ज़रूरत है भाई. उन्होंने क्या अमेरिका को टफ टाइम नहीं दिया? क्या अपने उन्होंने अपनी जो जिसको कहते हैं अपना नरेटिव जो है या अपने अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट नहीं बनाए. अब ब्रिक्स जो है, ठीक है, वो इन्होंने दे क्रिएटेड अल्टरनेटिव मैकेनिज्म. इसी तरह वर्ल्ड बैंक की तरह की तर्ज के भी बहुत से इदारे हैं जो चाइना ने बनाए हैं. उनका भी एक डेवलपमेंटल मॉडल है, ठीक है, जिसको अगर आप देखें तो उसके ऊपर भी एक प्रोपोगेंडा मशीन है, बट वो कम्प्लीटली डिफरेंट है वेस्ट से. Yeah. When we speak on this note ना, तो फिर वो होता है कि then the borders Yeah. and the differences and the categorizations, then they're there, right? Yeah, they are there. कि एक west है और बाकी this first world, second, like third world, right? हाँ. And within even अभी जब हम पहले पाकिस्तानी structures की बात कर रहे थे कि पहले हम families से we're dividing even on a global level. Now we're doing Gen Z, we're doing millennial, we're doing boomer. All of these divisions are there, We need to get rid of this. देखें but they have their benefits as well, don't you think? देखिए बेनिफिट वही बात है कि कुछ चीज़ें नेगेटिव कुछ पॉजिटिव वाला जनरेटिव है, इससे हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है. देखें वही बात है, यूनिटी कैसे आती है कि जब हम मिल के चीज़ें चलाते हैं. अगर हम बार बार इन्हीं चीज़ों को हवा देंगे तो हम इन्हीं चीज़ों में घूमते रहेंगे. हमारा नरेटिव घूम फिर के दिस वर्सेस दिस रह जाएगा. अब जितना भी फेमिनिस्ट एक नरेटिव है, आप देखेंगे वो शुरू जो हुआ, जो मैंने पढ़ा, जितना मैं उसको जानता हूँ, वो ये था कि जो जुल्म है ना सोसाइटी में, उसके खिलाफ औरत का क्या पर्सपेक्टिव है, औरत उसके बारे में कैसे सोचती है. और जुल्म जो था, जुल्म की शक्ल वो ये एक्सप्लॉयटेशन थी. वो जो मूवमेंट थी, अर्ली फेमिनिस्ट मूवमेंट, वो इन चीज़ों के अगेंस्ट थी. ठीक है, लेकिन अब वो रिड्यूस होते होते आप देख रहे हैं कि वो कहाँ पे मामला चला गया. इसी तरह ये डिवीज़न को आप किसी भी चीज़ उसमें देख सकते हैं. दिस वर्सेस दैट, द बाइनरी थिंकिंग जिसको कहते हैं, आप सोचते ही उन बाइनरीज के अंदर है. तो ये इसको हमें जो है ना, वी नीड टू गेट रेड ऑफ दीज बाइनरीज स्लोली. So everything that we've spoken about has been
at your end, I see a very positive point of view for the world and for how we will progress and how we can create a better world. Sounds very motivational, but a better world for uh, the next generations that are coming in, or the ones that, for instance, you're teaching even now. Exactly. But those are big hurdles to देखिए overcome. हर्डल क्या हमारी इस लाइफ में नहीं है जो हमें इन्होंने दी Of course. उस इस लाइफ व्हाट्स अट्रैक्टिव अबाउट दिस लाइफ इज दिस एंजाइटी हेल्दी इज दिस पैनिक हेल्दी कैन यू रेज योर चिल्ड्रन इन अ गुड वे इन दिस व्हेन you yourself is in a constant your mind is like going around here अच्छा यार मैं इतना कुछ करके भी कुछ है जो बाकी है. And it's very admirable that there's very few people who would take up that responsibility of even wanting to do something remotely on that end, to pull away from big structures. Exactly. and utilizing those for the benefit of something better. और इसकी देखिए वही अगेन क्या आई गिव क्रेडिट टू माय टीचर्स क्योंकि मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ. लाइक मैंने एमएस किया हुआ है, मैंने भी अपनी आई एम थिंकिंग अबाउट मैंने अपना एक प्रपोजल डिज़ाइन किया हुआ है पीएचडी का. तो आई कीप इंटरेक्टिंग विद माई टीचर्स और वो मैं उनसे ही ये चीज़ें सीखता हूँ. ये मैंने खुद से कुछ मेरे अंदर मतलब वो नहीं आया. और इसी तरह मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत सी जिसको कहते हैं ना बुजुर्ग मौजूद हैं. और बुजुर्ग जब मैं कहता हूँ कि वो लोग जिनसे हमें गाइडेंस लेने की अशद ज़रूरत है. देखें जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को अपने टीचर के सामने ये फील करता हूँ कि मुझे शायद कई जिंदगियाँ चाहिए इनका विजन समझने में. ठीक है, तो अगर कोई बच्चा मेरे से इंस्पायर हो रहा है तो मुझे ये बताना है कि यार ये सिर्फ एक मैं सिर्फ तुम्हें नच करने आया हूँ. It's a chain event. It's a change event, right? Independent. हाँ, तो वो यही है कि वो बजाय इसके कि आपको जब नॉलेज मिले और आप उसको बेचना शुरू कर दें, अनफॉर्चुनेटली आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको आप फिल्म मेकिंग में ही देख लें. आप बच्चे आज अपने बच्चों से पूछें कि आपने एल्फ्रेड हिचकॉक को आप जानते हैं, शायद किसी ने उसकी फिल्म नहीं देखी. ठीक है, वो स्पेस ओडेसी किसने बनाई थी, क्यूब्रिक. इस तरह के जो डायरेक्टर हैं या एग्जैक्टली. और आप देखें कि जो एक आपको कहना चाहिए जो हमें चीज़ें उनसे सीखनी चाहिए वेस्ट से, उस सब में बड़ी बात यही है कि उन्होंने कभी भी अपने एकेडेमिया पे कोई किसी किस्म की सेंसरशिप नहीं लगाई. ठीक है, उन्होंने अपनी फिल्म्स में कभी किसी किस्म की ये जो चीज़ें हमने सीखी ये किताबों में हम बाद में आए, पहले हमने फिल्मों में ये चीज़ें सीखी कि अच्छा यार ये सब इस सब चीज़ों के ऊपर बेहतरीन फिल्म्स मौजूद है, लेकिन क्या बच्चे वो देखने की कैपेसिटी उनमें है? तो ये अभी इस पे आप परेशान ना हो, इसको मिलके बनाएं, स्कूल्स में दिखाएं उनको. जिस तरह मैं जब उनको जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है यार कि मतलब क्लासिक्स दिखाई जाए उनको. These were part of my curriculum as well, like at the hands of my teachers, of course, not the hands of the university itself. Exactly. But this is something that I went through within my classes as well, not just individually, not just because I like appreciate and respect them a lot as directors, but so there needs to be more of that. Exactly. तो करना कुछ भी नहीं है, दुनिया माशाल्लाह जिसको कहते हैं ना कि ये जो मॉडर्नाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में ना ये बहुत फ़र्क है. ये हमें लगता है कि हम कोई पीक ऑफ ह्यूमैनिटी पे पहुंच गए हैं क्योंकि अब हमारे पास कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं. तो मॉडर्निटी को जब हम हिस्ट्री से जोड़ेंगे ना और हम सोचेंगे यार कि हमसे पहले के जो हमारे मतलब वो लोग हैं उन आर्टिस्ट को आर्ट शुरू कहाँ से होता है. देखें वो मुझे किसी बच्ची ने बताया क्लास में कि वैन गॉग एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत मतलब उनका एक नाम है. तो उन्होंने अपना कान काट लिया और फिर अपनी एक पेंटिंग बनाई और इवेंचुअली उन्होंने सुसाइड की. और आज उनकी पेंटिंग्स $1 मिलियन में बिक रही हैं. तो ये उस बच्ची ने सवाल उठाया क्लास में कि जिस बंदे में इतनी एंजाइटी थी कि वो अपना कान काट के क्योंकि मैसेज तो कुछ देना चाह रहा है ना. वो मैसेज यही है कि भाई कुछ गलत हो रहा है. या फिर कितना हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जो सॉरी थोड़ी सी वो सैड डिस्कशन हो जाएगी, नीड टू डिस्कस दैट रॉबिन विलियम्स ने सुसाइड कर ली. या इस तरह के कितने केसेस हैं. यंग आर्टिस्ट. हाँ, तो जिम कैरी आप देखें बावला हुआ फिरता है. ठीक है, यहाँ वो कहता है कुछ, ही इज ट्राइंग टू से समथिंग, ही इज ट्राइंग टू कन्वे समथिंग. तो ऐसे जो असेंट्रिक लोग हैं उनको भी हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, जो आगे कहते हैं कि यार दोस्त ये मतलब
इस सब ये जो कलेक्टिव डिप्रेशन का हम शिकार है ना, ये इसी वजह से है कि यार हमने अपनी जो वो है ना अपनी वैल्यू वो बहुत छोटी सी चीज़ों के साथ जोड़ी हुई है। डोंट यू थिंक जो ये फ्री जो होता है क्या फ्री हो जाए, फ्रीडम के ऊपर जो इतनी बड़ी एक कैंपेन चल रही है इंस्टा और टिकटॉक पे कि यू नो गेट इन योर वैन्स, मिलेनियल्स जितने भी हैं तो जॉब से भाग रहे हैं। हाँ, दे आर मोर इनटू। देखो यार ये नहीं, यही चीज़ खतरनाक है। देखो हमें उनको बताने की ज़रूरत है कि जो ओल्ड स्कूल क्या है। ओल्ड स्कूल यही है ना कि यार माँ बाप, आपके दादा दादी, आपके गांव, ये जो लोग हैं, ये जो कल्चर्स हैं, आप इनमें है दकियानूसियत, इनमें वो चीज़ें हैं जो हमें बदलने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इनको आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे, आप इनको क्यों भाई निकल जाओ वैन पे, आप कहेंगे अपनी बच्ची को तुम वैन पे निकल जाओ, नहीं निकलो वैन पे, बैठो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कंफर्ट जोन में रहो अपना। ये जो है ना ये हसल कल्चर, ये इसको हमें बताने की ज़रूरत है कि नहीं, जो पहली जनरेशन है उसका काम है कि उनके जो बच्चे हैं वो ना भुगतें जो आपने भुगता है। मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद, पर फैज़ के किसी शेर का ये जो था वो मीनिंग था ये कि भाई हमारा काम ये है कि हम उनकी एफर्ट कम करें। ये नहीं कि उनको कहें कि भाई ये दुनिया एक मैदान है और इधर कूद पड़ो और लड़ते रहो, नहीं भाई, वी नीड टू मेक देम, कहीं छोड़ने की ज़रूरत, अपने घरों में बैठ के कोजी कोजी दिसंबर में किताबें पढ़े। That's the idea ना कि if somebody has struggled, that is all they know and that is what they will enforce. वो ये नहीं होगा कि अच्छा because I've struggled I'll reduce that for you. It's because I've struggled you must struggle as well, you must suffer as well just as I have. This is a collective, I think, I might be wrong, but even a global thought process, especially when it comes to like corporate and work cultures में. But this all, you know, this manifestation is on digital media. In real world, the things are very old school. अगर आप देखें तो मेरे 2 बच्चे हैं तो हम उनको वैसे ही पालने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक ओल्ड स्कूल थॉट है, जैसा कि हमने सीखा उसको। तो ये चीज़ों को कन्वर्ज होने की ज़रूरत है। ये जो हमने खाम की लड़ाइयाँ मोल ली हुई है ना, that's perspective now, because that's how you function, that's how you navigate through your life with your family, with your children. But when you look at majority structures, I personally have not seen them work the way that you are. क्योंकि उसमें देखिए बर्दाश्त की जरूरत। आपको क्या ख्याल है कि माई फैमिली इज परफेक्ट, माई पेरेंट्स आर परफेक्ट, या मैं परफेक्ट हूँ? नहीं। तो क्या लिखा है हमारे डायरेक्टर साहब ने? उन्होंने कहा कि अब आप बोलना बंद कर दें, पास हो गई है, ओके गाइस, निकल जाएं अपने घर से। नहीं बस रैप अप। तो नहीं, बस आखिरी बात इसको ऐसे ही कंक्लूड करेंगे। देखेंगे जिंदगी है, ठीक है, बहुत ख़ास है, ये दोबारा पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती। दे आर स्ट्रेट एंड दे आर स्माइलिंग। तो अब वो ये है कि हमें इसमें यही देखने की ज़रूरत है कि देखें सच, ट्रूथ, ठीक है, ये आपको यूट्यूब की वीडियोस से शायद इतने आराम से ना मिले, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने एक्चुअली में आर्ट क्रिएट किया है। ये आज के लोगों ने नहीं किया, ये आज जितनी भी चीज़ें आप बिल्ड करते हो आप 100-200 साल लोगों की पहले की मेहनत के ऊपर करते हो। तो ये बिल्कुल जो हम एक जनरेशन ऑफ फूल्स अनफॉर्चुनेटली पैदा करना चाहते हैं जो रिवॉर्ड टू दैट कल्चर है, उसको हमें आर्ट के थ्रू यही बताना है कि भाई आर्ट का एक ही मकसद है और वो है इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर से सवाल करना। और वो जिस भी कैपेसिटी में हम हों, हमें सिनर्जीज क्रिएट करनी चाहिए, हमें एसोसिएशंस क्रिएट करनी चाहिए जो ये बात करें, और इंशाल्लाह ये सफ़र हम कोशिश करेंगे कि करते हैं। So with this wonderful thought, we'll conclude our podcast here. Thank you so much. Thank you so much for being here, for everything that you've shared. And I hope we'll see more of you in the future episodes. And I don't think so. Your director will let you invite me again, but let's see. Thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. This was Filmabad. See you in the next episode.